this 25th anniversary of Pakistan Hypertension League. So I'll be your host for the next 3 hours. My name is Dr. Mohammad Rahman Khalid. So I am in HCPS cardiology, and after HCPS, I have done fellowship in ECHO, and I am also US ECHO board certified. Currently working as a senior registrar in LUMS. So this is going to be the first official session of this Pakistan Hypertension League. The pre-conference workshop started few days back. We also did 2 workshops at Civil Hospital Hyderabad. आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, okay. So this session is primarily on echo. So majority of you I know are working cardiologists, and in cardiology, whether clinical cardiology or electrophysiology or interventional cardiology, we all know just how an important and pivotal role echo has in the diagnosis and management of patients with heart diseases. So for today's session, we have a star-studded lineup. So first of all, I would like to call upon Associate Professor Dr. Shahid Hussain Memon Saab, who is a panelist, to please come and sit on the stage. So Dr. Shahid, please. Then I would like to call upon Professor Mujib Tareen to please come forward and sit on the panelist table. Our other panelists include Professor Shehbaz Qureshi and Professor Amber Ashraf. So to begin the session, just I would like to request Dr. Irfan Ali Arbab Saab to come and recite just few verses of Holy Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim. Thank you so much, Dr. Irfan. So our presentations will begin with the first topic is the assessment of systolic function. And to present this, our presenter, she is an FCPS in cardiology. And after doing FCPS, she did her fellowship in cardiac imaging from NICVD. She was my teacher as well when I was doing my fellowship in ECHO. Besides, she has also done her US boards in ECHO as well as in nuclear cardiology. And she is currently working as an assistant professor at NICVD Karachi. So please welcome Dr. Sabah Hussain. Assalamu alaikum. So what we're going to do today, we're going to talk a little about how to evaluate cardiac function, cardiac systolic function with echo. So we're going to talk more about the systolic function assessment of LV, left ventricle rather than right ventricle. And why we're going to talk more about the left ventricle, I won't say it's important. I will rather say it's more researched. So we got more data about the LV rather than the RV. Even in the trials, even for the management point of view, we have worked more on the basis of left ventricular systolic function than right ventricular systolic function. I know in future we might get some more important information about the RV importance in prognosis and all this stuff, and we're going to include like RV systolic function too. I have included RV systolic function, but still, back to my point, we're going to talk more about the LV systolic function. So, my lovely kid, this is not mine. So why we are spending our time here in Hyderabad? For me, it's like new place. Talking about this because it's important. And why it is important, as I mentioned, LV systolic function is very important regarding when you're talking about the diagnosis of the patient, when you're talking about how to manage him, even in the clinical trial, even in determining the prognosis of particular disease in almost every cardiac illness. I'm talking about the ischemia, I'm talking about non-ischemic diseases, I'm talking about the congenital heart diseases. And what do this stands for? So, LV systolic function, I believe I do not have the mouse like this, is the ability or efficiency of the heart to pump the blood with each heartbeat. And most commonly, conveniently and reliably, it is measured with the help of echocardiography. That's why we have made this session to understand how we're going to measure, how we're going to estimate the LV systolic function.
And this is the most common indication that we usually do face. We have done what we were doing in the Purana Pakistan on the previous study. I hope you can hear me without even this mic. If I turn around, I cannot move this. So the most common method that we usually do use is eyeballing of left ventricular function. Secondly, we were doing in the past, we are doing sometime these days too, is fractional shortening. Some hemodynamic parameter that was used in the past, even in the trials, were stroke volume, cardiac output, and cardiac index, contractility, tie index, MAPC or mitral angioplasty, systolic excursion. You might have heard or learned or read it out in the previous studies. Regional wall parameters or regional function assessment. In our days in Naya Pakistan, I believe this is more important to remember. That is again, eyeballing still has a role. It still has a reliable role in estimating the LV systolic function. So Dr. Rahman जो है ना वो मुझे compete नहीं कर सकते क्योंकि मेरी eyeballing is comparatively better than him. तो as I'm a teacher, तो इसीलिए मैंने इसे top of the list रखा है. ठीक है for especially Dr. Rahman. Second is these days we are talking more about LVEF. अगर किसी से कहें कि भाई फंक्शन क्या है, एलवी का सिस्टोलिक फंक्शन क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हाँ इतने परसेंट ईएफ था, हाँ इतने परसेंट ईएफ था, तो वी आर टॉकिंग मोर अबाउट द एलवी इजेक्शन फ्रैक्शन. So this is the most common parameter that we have decided for estimation of LV function, LV systolic function. And how do we measure this ejection fraction? We're going to talk a little bit about. We are more dependent upon the volumetric method nowadays, not area length methods. With 2D, we go with the biplane, and we have started doing the 3Ds and 4Ds volume assessment. That's a kind of real-time volume measurements. Strain has started, it's like, you know, जैसे नजूमी होता है ना कि प्रेडिक्ट कर लिया कि एलवी फंक्शन ख़राब होने वाला है या पहले से बता दिया कि आपके सितारे अब गर्दिश में आ गए, तो स्ट्रेन का वैसा भी एक रोल है. तो इट डू नॉट ओनली गिव यू द व्हाट एलवी फंक्शन इज एट दैट टाइम, it also do give you some prediction that that's going to be like this much bad or that much bad in the future too. So we'll talk in later about it. So how do we do strain? Initially we were doing it with tissue Doppler imaging. Now we are using the speckle tracking. Again, we are still using the segmental wall assessment in Naya Pakistan. अच्छा इसको रन करना है. चने जी, इम्तिहान शुरू. डॉक्टर रहमान आपसे ही स्टार्ट करते हैं जी. अच्छा नहीं 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 नहीं, बस जिसका नाम पता चला ना वो फंस जाता है. चलिए भाई, टाइम शॉर्ट है, फिर बात की चाय नहीं मिलेगी आपको. जी बिल्कुल, क्या बताना है? सॉरी 45. तो वी आर टॉकिंग अबाउट एलवी सिस्टोलिक डिसफंक्शन. ठीक है, moderately reduced LV systolic dysfunction. Okay, fine. This is okay. This patient was having, actually, I have presented it last time. He was having L-Kappa syndrome, and with him, there was moderate LV dysfunction in this patient. So we consider it to be like 35 to 40% of EF. And what have you done? क्या किया था? कैसे पता चला? Eyeball with this, not me. Okay, so we have done the eyeballing. Eyeballing is like visual estimation of LV function, and that comes with experience. I'm not talking about Dr. Rahman. Still, I would say that when Dr. Tipu will report it or Dr. Imran will report it, they will report it much, much better than me. But still, we have the variability. Dr. Tipu might think a little different than me, or Dr. Imran would have a little different opinion from Dr. Tipu. But do have a different inter-observer variability, but still it's reliable, still it's reproducible, and still it's more commonly, more conveniently and reliably used. So this is the most common method we use for measuring the LV systolic dysfunction in even Purana Pakistan as well as in Naya Pakistan. So what's the problem with this? It's operator dependent. If you are experienced, yes, it's very, very reliable. But if you are a little bit inexperienced, a little student of Dr. Rahman, I would say, तो थोड़ा सा मसला होगा. And how we would determine it? हम एंडोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, हम ओवरऑल इसकी अपनी अंदर डायमीटर कितना रिड्यूस हुआ वो चेक कर रहे होते हैं. देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी डू मेजर. थिकनेस कितनी इंप्रूव हो गई, डायमीटर कितना रिड्यूस हो गया, हर एंडोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी या मूवमेंट कितनी ज़्यादा आई, उसकी बेस पे हम आई बॉलिंग करके इसको डिसाइड करते हैं. चलें,
Anyone else? Normal. So view कौन सा है? This is a parasol long axis view and it's normal despite of the fact कि ये बहुत अच्छी, I wouldn't say कि बहुत अच्छी इमेज है, लेकिन still ये इतना क्लासिकली नॉर्मल केस है. सही है. तो जिसने भी नॉर्मल बोला था उसको वो मेरी तरफ से गाड़ी मुबारक हो. पैसे बस आप भिजवा दीजिएगा, गाड़ी आपके घर आ जाएगी. ओके, आई डोंट नो, डॉक्टर रहमान का नहीं पता. मी एंड डॉक्टर टीपू के टाइम पे बड़े मशहूर एक मशहूर सिंगर रहे थे. किसी को नाम पता है इनका? जी, अदनान समी खान. ओके फाइन. क्या हुआ बेचारे अदनान समी खान को? तो दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग इज. फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वेट टू दिस वेट. ठीक है, देखने में क्या लगता है कितना रिडक्शन हुआ होगा, कितना परसेंट? 70% तक हो गया. नाउ इज मोर स्मार्टर, लेकिन वो अब हमारे पास नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ यही देखना होता है कि इस वेट से या इस वेट से इस वेट को जो फाइनल वेट है सब्ट्रैक्ट करना होता है. ये मैथमेटिक का फार्मूला है. और फिर बेस लाइन जो वेट होता है उसे डिवाइड करते हैं. वी गेट सम फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग. If you wanted it in the percentage, you have to multiply it with 100. That's again a mathematic formula. It's not specific to the echocardiography. अगर हम इसको echo में apply करें तो what we are doing in echo, हम उसमें diameter लेते हैं. It's a 2D measurement. आपने 2D एक क्रॉस सेक्शन लिया और आपने उसका डायमीटर देख लिया कि जब डायस्टोल में वो फैला तो कितना डायमीटर था, एंड व्हेन इट कम्स आउट इन द सिस्टोल उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कितना डायमीटर बच गया. उसको जब आप वैल्यू निकाल लेते हैं लाइक दिस एंड यू डिवाइड विद द बेस लाइन एंड डायस्टोलिक डायमीटर एंड इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 100 यू विल गेट द फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग. समझ में आ गया? आई नो यू मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी डू नो अबाउट इट. तो ये एक पुराना मेथड था एस्टिमेशन का और नॉर्मल वैल्यूज अबाउट 28%. क्या फ्लॉज है इसमें? क्यों नहीं करें अब? क्यों सेगमेंटल में एरर आएगा? 3 सेक्शन में अगर हम ले लें, चले. हम्म 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 अच्छा देखिए, इसमें इशू ये होता है वही वाली बात कि दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, आपको मल्टीपल जगहों पे लेंगे और लेट से कि आपने अगर लेट से 3 भी लिए हैं तब भी वो सारे एरिया को कवर नहीं कर रहे. ठीक है, यू आर स्टिल लेफ्ट विद सम एरियाज जो कि कवर्ड नहीं हुए. तो इसी तरह से है कि भाई अगर एक खीरा आपने उठाया, उसके ऊपर का खीरा हिस्सा जो है वो ख़राब है, लेकिन आपने उसको जिस हिस्से से काटा है वो फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो आपको उस क्रॉस सेक्शन में फर्स्ट क्लास ही दिखेगा, लेकिन ऊपर जिस बंदे ने उसको लिया है उसको पता है कि एक्चुअली वो ख़राब है. ठीक है, तो ये इशू होता है विद द 2 डायमेंशन क्रॉस सेक्शन व्यू. यू कैन हैव अनरिलायबल वैल्यू. इसीलिए अब इसको डिस्करेज किया गया न्यू गाइडलाइंस एंड वी आर नॉट डूइंग इट दीज डेज. वैल्यूज रिलायबल नहीं होती. एटिपिकल सेप्टल मोशंस के साथ रिलायबिलिटी नहीं होती इसकी. तो दिस इज़ हाउ वी वर डूइंग इट इन द पास्ट. हमने क्रॉस सेक्शन लेते थे. यूजुअली इट इज़ डन एट द लेवल ऑफ टिप ऑफ माइट्रल वेल्व और हम इसकी डिफरेंट डायमेंशन डायस्टोल में एंड सिस्टोल में लेके वी एंड अप विद, आई डोंट नो, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है. दिस इज द EF एंड दिस इज द फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग. तो ना सिर्फ इसने फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग आपको बताई है, इसने अजम्पशन की है फॉर EF2. ये एक अजम्पशन करता है एंड अजम्पशन कैन बी रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि इसने सिर्फ एक सेक्शन पे अजम्पशन की है कि इतना डिफरेंस आएगा तो इतना वॉल्यूम बन के इतना EF बन जाएगा. ये अजम्पशन है एंड दैट इज़ रॉन्ग यूजुअली. ठीक है, पुराने ज़माने में कुछ और डॉपलर स्टडीज़ हम कर रहे होते थे. डॉपलर स्टडीज़ कैसे करते थे? वी अप्लाई सम डॉपलर ऑन द 2D इमेजेस एंड वी गेट सम वैल्यूज़. अगर वो वैल्यूज़ अच्छी आ रही हैं तो वी कंसिडर इट टू बी हैविंग अ नॉर्मल LV फंक्शन. अगर बुरी आ रही है तो वी कंसिडर इट टू हैविंग एन एबनॉर्मल LV फंक्शन. वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने देखा कि भाई मैट्स कितने हैं किसी बंदे ने अचीव किए, एफिशिएंसी बता रहा होता है. आपने देखा उसका मेटाबॉलिक रेट कैसा चल रहा है, एफिशिएंसी बता रहा होता है. तो एग्जैक्टली हम इसी तरह से जो है डॉपलर लगा रहे होते हैं. And what do we actually measure in this? There are 3 parameters that we were practicing in the past. One was stroke volume, another was cardiac output, and third one was cardiac index. What is stroke volume?
खाना खा के सब आ गए, चाय का ब्रेक। जी जी सर, थोड़ा थोड़ा सा। तो इट्स अमाउंट ऑफ ब्लड दैट हैज बीन इजेक्टेड विद एवरी बीट। क्या करेंगे, वी ओनली गोना डिटरमाइन कि एक, लेट्स से कि ये दरवाज़ा है, अभी जितने लोग अंदर अंतर हुए, मुझे कैसे पता चलेगा दरवाजे का साइज़ और किस वेलोसिटी से आ रहे हैं। सिमिलर जैसे मैं हैदराबाद में एंटर हो रही थी तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि साइज़ बहुत छोटा हो गया है रोड का और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वेलोसिटी कम हो गई थी। तो वी डिटरमाइन द स्ट्रोक वॉल्यूम अकॉर्डिंगली। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डॉपलर लगाते हैं ऑन एलवी आउटफ्लो ट्रैक। हमारा दरवाज़ा इज़ एलवी आउटफ्लो ट्रैक, उसकी जो वीटीआई या वेलोसिटी होती है उसको हम ट्रेस करते हैं, और एलवीओटी के डायामीटर से, कंसीडरिंग इट टू बी इन अ सर्कल, हम उसका एरिया निकाल लेते हैं और उनके प्रोडक्ट को हम स्ट्रोक वॉल्यूम के तौर पे कंसीडर करते हैं। और जब इसको हम हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि पर मिनट कितना है, और अगर बॉडी सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो वी विल एंड अप विथ इंडेक्स। तो हाउ डू वी डू इट, एज आई ऑलरेडी डू मैंशन यू, LVOT डायमीटर ड्यूरिंग मिड सिस्टोल में हम लेते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल अबाउट मेजरिंग द LVOT डायमीटर, क्योंकि ये स्क्वायर होता है, तो अ सिंगल एरर इज स्क्वायर्ड व्हेन यू आर टेकिंग द फाइनल वैल्यूज़। इसी तरह से अपाइकल फोर्स चैम्बर में पल्स वेव डॉपलर के ज़रिए हम एओटिक वैसे 0.5 to 1 mm डिस्टली रख के इस तरह की ट्रेसिंग करते हैं, जो कि LVOT की पल्स वेव ट्रेसिंग है, एंड वी एंड अप विद सम टाइम वेलोसिटी इंटीग्रल। अब इसमें हमारे पास जो डायमीटर था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2.06 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.785, ये एक्चुअली पाई डिवाइडेड बाई 4 की इक्वेशन से आया हुआ है, और वी गॉट अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3.3 सेंटीमीटर। जब हमने उसको उसकी वेलोसिटी से या टाइम वेलोसिटी इंटीग्रल से मल्टीप्लाई किया तो वी एंड अप विद स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ, थोड़ी सी आवाज़ तो आए, हाँ थोड़ा सा और लाउड, अब बुढ़ापा आ गया है, 63 ml। ठीक है, हार्ट रेट 92 से हमने मल्टीप्लाई करके कार्डिक आउटपुट ऑफ 5.8 लीटर पर मिनट निकाल लिया, एंड दिस इज ऑल नॉर्मल वैल्यूज़। सो एज आई ऑलरेडी डू मैंशन यू कि ये हीमोडायनामिक्स है, एंड हीमोडायनामिक्स आर डिपेंडेंट अपॉन मेनी अदर फैक्टर, प्री लोड क्या था, आफ्टर लोड क्या था, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसी थी, तो ये मल्टीपल चीज़ों से इफेक्ट होगा। हार्ट आपका सही होगा लेकिन ऊपर नीचे की किसी प्रॉब्लम की वजह से भी आपके पास एबनॉर्मल वैल्यूज़ आ सकती हैं। इसी तरह से इफ देयर इज एबनॉर्मलिटी विद LVOT, आपको लग रहा है कि वहाँ की VTI किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बढ़ी हुई होगी, तब भी ये प्रॉब्लम दे सकता है। नॉर्मल वैल्यूज़ याद रखने वाली हैं फॉर द एकेडमिक पर्पज। नॉर्मली स्ट्रोक वॉल्यूम इज अबाउट 50 to 100 ml। नॉर्मल कार्डिक आउटपुट, I know you must be knowing it, is between 4 to 8 liter per minute, and cardiac index is usually between 2.5 to 4 liter per minute per meter square. Okay, in past we were also doing contractility DP/dt. In my life I have done it only once or twice, but people were doing it in the past. उसमें क्या करते थे, we see how much pressure is changed with time, एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितना चेंज हो गया, एंड व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी मेजर इट, अगेन इट्स द हीमोडायनामिक्स। डॉपलर स्टडी के साथ होगा, अगर MR होगा तो हो पाएगा, MR नहीं है तो नहीं हो पाएगा। आपकी अलाइनमेंट सही है तो हो पाएगा, आपकी अलाइनमेंट सही नहीं है तो यू विल मिस मैनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। एंड व्हाट डू वी डू, वी जस्ट सी कि आपका जो है प्रेशर डिफरेंस कितना आया, तो टाइम हम मेजर करते हैं जब उनकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड पे होती है, फ्रॉम 2-3 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड में कितना टाइम लगा उसको हम मेजर करते हैं, एंड देन वी अप्लाई अ फार्मूला लाइक दिस। 32 mm ऑफ मर्क्यूरी एक्चुअली डिफरेंस है बिटवीन 1 to 3 की प्रेशर्स का, और जो टाइम लगा होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। नॉर्मल वैल्यूज बिटवीन 1000 to 1200, लेस देन 500, इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं डिसाइडेड है, बट लेस देन 500 इज कंसीडर्ड टू बी हैविंग अ सीवियर एल्वी सिस्टोलिक डिसफंक्शन। इट्स रिलायबल तो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि एटिपिकल वही वाली बात, डिससिंक्रोनी जिसमें आ जाए, जिसमें MR आ जाए, MR ना हो, उनमें ये प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, टाई इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, मायोकार्डियल परफॉर्मेंस इंडेक्स कहलाता है, और इसके लिए कुछ नहीं है, हमने ये भी अगेन एक पैरामीटर है टाइमिंग का। जब एल्वी सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, इजेक्शन टाइम क्या होगा, लेट्स से कि एल्वी का फंक्शन रिड्यूस है, इजेक्शन टाइम को क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, कम हो जाता है, कम हो जाता है, इजेक्शन टाइम कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन टाइम बढ़ जाता है, सही है। तो
What do we see in with the LV systolic dysfunction? Isovolumetric contraction time बढ़ जाएगा, और जब isovolumetric contraction time बढ़ जाएगा, टाई इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो अनलाइक अदर पैरामीटर, जितनी कम वैल्यू होगी टाई इंडेक्स की, इट वुड बी बेटर. तो हमारे पास इट शुड बी लेस देन इन नॉर्मल पेशेंट्स, इट शुड बी लेस देन 0.4. दिस इज हाउ वी मेजर द टाई इंडेक्स. कैसे निकालते हैं? हम पल्स वेव डॉपलर लगाते हैं एट द लेवल ऑफ माइट्रल वेल्व. ये तो देखा होगा ना सबने, ये वेलोसिटी, द वन बिफोर इट, द वन आफ्टर इट, उसको हम मेजर कर रहे होते हैं, कंपेयरिंग इट विद द LVOT वेलोसिटी. अपाइकल 5 चैम्बर में LVOT की जैसे हमने VTI पहले अभी देखी थी, वैसे ही निकालते हैं. इससे पहले वाला टाइम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन टाइम है, इसके बाद वाला टाइम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन टाइम है. बाद वाला क्या मतलब? LVOT वेलोसिटी स्टार्ट होने और A वेलोसिटी खत्म होने के दरमियान का टाइम पीरियड इस आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन टाइम. LVOT वेलोसिटी खत्म होने और E वेलोसिटी स्टार्ट होने के दरमियान का टाइम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन टाइम. इनके सम को हम पूरी LVOT वेलोसिटीज के टाइम से डिवाइड करते हैं, दैट इज इजेक्शन टाइम, एंड वी एंड अप विद टाई इंडेक्स. मैप्सी वॉज अनदर पैरामीटर अगेन. जैसे हम टेप्सी लेते हैं वैसे ही हम मैप्सी लेते हैं, वैसे ही एम मोड हमने लगाया माइट्रल वेव के लेवल पे, माइट्रल एनुलस के लेवल पे, लेटरल वॉल में भी एंड अप समथिंग लाइक दिस. बिल्कुल टेप्सी की तरह ही आएगा, बिल्कुल वैसी ही मेजरमेंट होगी. हाउएवर द वैल्यूज आर डिफरेंट. इफ इट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर इट्स कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, बट अगेन इट कैन बी अफेक्टेड बाय मल्टीपल अदर पैरामीटर. आप सिर्फ एक जगह को देख रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ को देख रहे हैं, आगे की चीज़ का आप डिटरमाइन नहीं कर सकते. खुश क्यों हो रहा है भाई? कोई आइडिया? कोको कोला की वजह से इसलिए खुश हो रहा है कि पुराना पाकिस्तान खत्म हो गया है. सो वी आर स्टार्टिंग विद नया पाकिस्तान. सो इन नया पाकिस्तान व्हाट वी गोना टॉक मोर अबाउट इज अगेन इजेक्शन फ्रैक्शन. ठीक है, तो हमारे पास अब डिफरेंट टेक्निक्स हैं. विद 2D 3D 4D हम इजेक्शन फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. 2D में जो लिमिटेशन है अगेन इज अजम्पशन. 2D पे पूरा वॉल्यूम नहीं आ रहा होता हमारे पास, हम एक एजम्पशन करते हैं कि इतना सिलेंडर या इतना एक बना है हाइट पे, इतना इसका एरिया, इतना इसका वॉल्यूम अज्यूम किया गया है विद मैथमेटिकल फार्मूला. तो उसकी भी कंपेरेटिव रिलायबिलिटी इन कंपैरिजन टू 3D एंड 4D कम है. लेकिन अभी तक के लेवल पे द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग द LVEF इज विद 2D बाइप्लेन सिम्पसन मेथड. ठीक है, चलें. सो व्हाट इसका सबका EF मेजर करने का एक ही फार्मूला होता है कि वी डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम. एंड डायस्टोल में इतना वॉल्यूम था, एंड सिस्टोल हुआ तो इतना वॉल्यूम बच गया, उसको अगेन वही बेस लाइन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया, एंड वी एंड अप विद इजेक्शन फ्रैक्शन. सो हमने क्या करना होता है? वी जस्ट ट्रेस आउट द एंडोकार्डियल बॉर्डर्स. बाइप्लेन सिम्पसन इज द मेथड दैट वी डू इन द 2D. हमने पूरा एंडोकार्डियल बॉर्डर को ट्रेस कर दिया. और कौन कौन से व्यू में ट्रेस करते हैं? 4 and 2. We usually use the 2 orthogonal view, usually the apical 4 chamber and 2 chamber, और उससे हम इसका डिफरेंस का अंदाज़ा कर लेते हैं. फ़ायदा क्या होता है इसका? क्या फ़ायदा होगा? एक्यूरेट होगा. क्यों एक्यूरेट होगा? क्योंकि आप जो बता रहे थे ना कि 3 सेगमेंट में हमने एम मोड को फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग के लिए डिवाइड किया. अब वो 3 नहीं 20 सिलेंडर्स में डिवाइड है. तो यू हैव टेकन अ क्रॉस सेक्शन एट 20 लेवल एंड इन 2 ऑर्थोगोनल व्यू. तो थिंक अबाउट इट, आपने कितने सेगमेंट्स को कवर कर लिया है. बिल्कुल माइटर एन्युलर के लेवल से स्टार्ट लेके एपेक्स तक आप गए. बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही. तो आपने उसकी बजाय ये कि मैंने एक इस साइड का क्रॉस सेक्शन के मैंने उस खीरे के 20 सेगमेंट्स बना दिए हैं. तो देयर आर लाइकली चांसेस कि भाई दरमियान में कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो यू विल पिक इट अप. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू इट. ये हमने अपाइकल 4 चैम्बर में लिया, जैसे आपने कहा था. इसको हमने 20 सिलेंडर्स में डिवाइड किया. लेकिन इसकी जो इसने वॉल्यूम मेजरमेंट्स की है दैट इज़ अजम्पशन. हमने ट्रू वॉल्यूम नहीं लिया हुआ होता है, एक मैथमेटिकल फार्मूले के जरिए हमने निकाले हुए हैं. इसी तरह से हमने ये एंड डायस्टोल में, एंड सिस्टोल में, और इसी को हमने फॉलो किया है एंड डायस्टोल इन 2 चैम्बर एंड एंड सिस्टोल इन 2 चैम्बर. एंड वी एंड अप विद सम गुड EF ऑफ अबाउट 64%. ठीक है, ये एक एवरेज करके हमें 4 and 2 को मिला के बता देता है. तो आप लोग क्या फॉलो करेंगे? फ्रैक्शनल एरिया चेंज, फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग और दिस बाइप्लेन सिम्पसन. थैंक यू. अच्छा जी, ये क्या है? दिस इज 3D.
जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है इतना ही काम करने में भी अच्छा होता है, उसमें रियल टाइम इमेज आते हैं। अब आपने एजम्पशन नहीं किया, 20 सिलेंडर में नहीं किया है, आपने उसकी पूरी एक रियल टाइम पिक्चर देखी है, पूरा एक उसको मतलब मॉडल बनाया है और उस मॉडल से आपने एक्चुअल वॉल्यूम निकाला है, इसलिए ये मोस्ट रिलायबल कंसीडर किया जाता है। और इसमें हमारे पास ऑप्शन और भी हैं कि हमने सिर्फ एक ही दफ़ा हमने कर्सर रखना होता है, वो खुद ही 3 स्लाइस करके हमें हर व्यू जो हम बार बार बना रहे थे 4 चैम्बर, 3 चैम्बर, 2 चैम्बर, वो खुद ही तीनों में डिवाइड कर देगा, खुद ही उसकी मेजरमेंट ऑटो सिस्टम के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर देता है। तो थिंग्स आर मच ईजियर विद दिस न्यू मोडालिटीज एंड रिलायबल। शॉर्ट एक्सेस के साथ देगा, ये जो हम बता रहे थे कि 3 चैम्बर में करके स्ट्रे देगा। और इसमें ना सिर्फ ये फ़ायदा है कि आप वॉल्यूम निकाल के वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पूरा निकलेगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पूरा निकलेगा, मेजरमेंट उसी तरह से आएगी। इसमें स्ट्रेन भी पॉसिबल है, जैसे स्ट्रेन हम 2D में कर सकते हैं, ऐसे ही स्ट्रेन इसमें भी पॉसिबल है। सो दिस इज़ अगेन अ मल्टी डायमेंशनल व्यू ऑफ द हार्ट। हाँ, बस रियल टाइम इमेज, जी जी, रियल टाइम इमेजेस आते हैं, और ये हाउ इट्स डिपेंडेंट अपॉन द इमेज क्वालिटी। So this is how it appears during the study. ये normal values हैं EF की, I'm sure most of you do already do know about it, so हम इसको skip करेंगे। GLS is an advanced modality, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि predictability इसकी बहुत अच्छी है, especially in the patients that are undergoing the chemotherapy, especially for the patient that are having the restricted cardiomyopathies like hypertrophic cardiomyopathies and amyloidosis के लिए। तो ये एक टॉपिक है जो कवर्ड होगा आज के दिन में, तो आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल। इस तरह का बुल्सआई अपीयरेंस आती है इस तरह के इमेजेस के साथ, ये भी डिस्कस्ड होगा आपके लिए, तो वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम विद दिस। रीजनल वॉर एनालिसिस में अगेन वही वाली चीज़ है कि आपने हर सेगमेंट को अलग अलग देना है और हर सेगमेंट को अलग अलग स्कोरिंग करनी है। इसका स्कोरिंग सिस्टम बहुत सादा सा है, अगर नॉर्मल है तो आपने 1 स्कोर करना है, अगर हाइपोकाइनेटिक है तो 2, सीवियरली आपको लगा कि 10% से भी कम उस सेगमेंट की कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो कंसिडर इट टू बी हैविंग 3 और अकाइनेटिक स्कोरिंग। डिस्काइनेसिया में बिल्कुल ही अपोजिट मूवमेंट शुरू हो जाती है, एंड विद इट वी कैन डिटरमाइन द रिस्क ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। चलें जी, क्या है, चलें, इट्स इन बिटवीन 2 and 3, क्या नज़र आ रहा है? यस तो आपने बेसिकली सेगमेंट्स में कमेंट किया है, तो यू हैव एनालाइज कि भाई एक एंटीयर सेगमेंट पूरा गया हुआ है, EF क्या होगा? लाइकली है कि अच्छा खासा रिड्यूस हो गया होगा, इट्स इन बिटवीन लाइक मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर वाली कोई चीज़ होगी, ठीक है। तो विद दिस इवन सेगमेंट के साथ भी आप LV फंक्शन का अंदाज़ा करते हैं, दैट्स व्हाई सेगमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, कि अगर सेगमेंट गया है तो LV EF डेफिनेटली दे आर ऑल आर कंबाइनली कंट्रीब्यूटिंग टू द LV फंक्शन, तो अगर गया है तो डेफिनेटली नुकसान होगा। ये क्या हुआ है, क्या फ़ायदा होगा? डिफ़िकल्ट स्टडीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एंडोकार्डियल बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा तो यू कैन गो विद द कंट्रास्ट स्टडी, इट्स नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान दो, लेकिन जो है दिस कैन हेल्प यू आउट इन डिटरमाइनिंग द LV फंक्शन इन बाय डिलिनिएटिंग द एंडोकार्डियम। ओके, चलें ब्रीफली अबाउट द RV फंक्शन। RV सिस्टोलिक फंक्शन कैसे कैसे असेस करते हैं? एज आई ऑलरेडी डू मैंशनड यू, RV सिस्टोलिक फंक्शन में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज पैरामीटर इज टेप्सी। टेप्सी के जरिए हम एनालाइज करते हैं। टेप्सी अगेन वही एम मोड लगाया हमने फ्री वॉल पे ट्राइकस्पिड एन्युलस एंड वी ऑर्डर ट्रेसिंग लाइक दिस, और इसकी नॉर्मल 17+ की वैल्यूज़ की बेस पे हम डिसाइड करते हैं नॉर्मल। सेकेंडली एस प्राइम की वैल्यू से भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हमने सिर्फ वहाँ पे जो है TDI लगा दिया एंड वी गॉट सम ट्रेसिंग लाइक दिस, एंड द पीक वैल्यू ऑफ एस प्राइम इज कंसिडर्ड टू बी लाइक RV एस प्राइम। इसकी बेस पे भी हम एनालाइज करते हैं। ये क्या करा है हमने? RV, this is not RV strain। ये कौन सी मोडालिटी यूज की है? 2D है 3D है? 2D मेथड है। 2D मेथड में हम RV स्ट्रेन नहीं करते हैं। दिस इज फ्रैक्शनल एरिया चेंज, क्योंकि 2D है ना, वी कैन नॉट डिटरमाइन द वॉल्यूम फॉर द RV, हमारे पास पूरा मॉडिफाइड उसके लिए चाहिए होता है, और 2D इज़ नॉट रिलायबल फॉर द RV वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट्स। उसके लिए 3D एंड 4Ds आर द मोडालिटीज़। तो हमने एरिया निकाला है, एंड विथ फ्रैक्शनल एरिया चेंज हमने डायस्टोल में एरिया ले लिया, उसमें से सिस्टोल माइनस किया,
तो फ्रैक्शनल एरिया चेंज की बेस पे हम डिटरमाइन करते हैं. ये जो स्ट्रेन लगा हुआ है ना, इज मेनली मेड फ्रॉम द 2D एंड 3D, 3D एंड 4D. ये फ्रैक्शनल एरिया चेंज का हमने लगाया हुआ है. दिस इज द वे वी डिटरमाइन द RV फंक्शन विद 3D. वो पूरा एक रियल टाइम पिक्चर के साथ आएगा. तो नॉर्मल वैल्यूज हैं. चलें, सो आई एम फिनिश विद माई प्रेजेंटेशन. कुछ यमी टेस्टी ट्रीट. चलें जल्दी जल्दी, क्योंकि डॉक्टर रहमान ने ना मुझे ब्लिंकिंग करना शुरू कर दिया कि बस ख़त्म, अब टेस्ट वेस्ट नहीं. चलें हम फिर भी चला लेते हैं थोड़ी देर. डॉक्टर रहमान, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स. सीवियर सिस्टोलिक डिसफंक्शन क्या है? सेगमेंटल, जनरलाइज? ऑलमोस्ट जनरलाइज. तो आप लोगों को मुझे मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पीपल आर माशाल्लाह परफेक्ट. चलें, अच्छा ये वही पेशेंट है एलकापा वाला, ठीक है. तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज अनेबल टू टेक आउट, आई एम नॉट वेरी गुड इन सच स्टफ, तो आई वॉज अनेबल टू टेक आउट द आइडेंटिटी ऑफ पेशेंट्स. ये हमारे पास रिकॉर्डेड इमेजेस है. तो ये सेम पेशेंट जो हमने मॉडरेट एलवी डिसफंक्शन का पहले देखा था, ये वही पेशेंट है. व्यू डिफरेंट है. अगेन जल्दी जल्दी. नॉर्मल, शॉर्ट एक्सेस, अपाइकल, नो इट्स फ्लेक्स. चले, मेरे ख्याल से ये ना आपके लिए बड़े खुश हो रहे हैं. सही, गुस्से में खुश हो रहे हैं शायद. चलें, मोडेलिटी क्या किया है? एम मोड किया है. क्या निकाला है हमने? फ्रैक्शनल शॉर्टनिंग एज वेल एज EF. अच्छा, ये टिकॉल्स एक्चुअली मेथड कहलाता है, तो उसका वो नाम लिखा है. ये क्या किया है? स्ट्रेन किया है. क्या नज़र आया है? ये LV. अच्छा, ये काइंड ऑफ ब्लड है, लेकिन आई वॉजन फोकसिंग अबाउट द LV स्ट्रेन. इसे खास पैटर्न चला है, इसलिए मैंने इसको लगाया था इसमें. बताएं. अच्छा, ये जो है ना, द रेड इन द स्ट्रेन इज गुड, अदर थिंग्स आर बैड. तो इफ़ यू फाइंड सम गुड इन द अपेक्स, चेरी ऑन टॉप, ये एक्चुअली स्ट्रेन ऑफ अमाइलोडोसिस को फेवर करता है. तो इसका काइंड ऑफ टिपिकल फॉर अमाइलोडोसिस. सिर्फ हमारे स्ट्रेन के रोल के लिए मैंने ये लगाई थी. सो यू पीपल आर, एज आई टोल्ड यू, वेरी वेरी गुड. तो डॉक्टर रहमान, थैंक यू. Thank you so much, Dr. Sabha. It was a wonderful talk. Any questions, anybody? The panel of experts like to give any more input on this? Sir, I have a small question. I mean, just in practical life, I mean, if you are sure that this is a plumb normal LV, or whether the EF is severely reduced on visual assessment, I mean, in private sector especially, would you guys still do and report the Simpsons-Blaipin method? Or you would just report it as visually estimated EF and move on? I mean, is it a must to always, I mean, we know the guidelines say it, you do it, it's a gold standard. इट्स नॉट मस्ट, लेकिन ये कि आप जितनी चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना अच्छी बात है. आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप सिम्पसन के साथ लिखेंगे. लेकिन ये कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आई बॉलिंग पे ज़्यादा लिखा जाता है. लेकिन ये कि इफ़ देयर इज़ डाउट, तो फिर डेफिनेटली यू वुड लाइक टू डू दैट. Whenever in doubt. I think that we should do it on all patients. Okay. Because if you start doing it on all patients, your time required to do the modified Simpson would be shortened. Like if you are doing it on thousands of patients, you would be very fluent. So make it a habit, I would suggest, to do it even on normal. डॉक्टर टीपू का कहना भी ठीक है, मगर मैं आई डू इट ऑन एवरी पेशेंट. उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप क्रंच जगहों पे फंसते हैं तो आपको कोई दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं होती. सो आई वुड सजेस्ट डू इट इन एवरीबॉडी. और एक मेंशन किया था डॉक्टर सबा ने भी that artificial intelligence. Now with just one click, you can take out all the symptom, all the strain with just one click. So जो टाइम का मसला था वो भी अब खत्म होना चला. खत्म होने वाला है. हमारे यहाँ नहीं आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी, बट इन नेक्स्ट आई थिंक 4-5 years every machine with artificial intelligence will be in institutes. So डॉक्यूमेंट करना तो बहरहाल ज़रूरी है. Alright. ठीक है. So Dr. Sabha likes to comment as well. ये जो
एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि अगर सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो फिर सिम्पसन की रिलायबिलिटी कम हो जाती है अनटिल अनलेस यू आर डूइंग 3D और 4D। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो शायद हम सबको रिप्लेस कर देगा फ्यूचर में, तो वो तो एक अलग बात हो जाएगी। Dr. Sabha, a question for you. Ejection fraction by a wall motion scoring index method, how useful and how reliable do you think that is? जी मैडम, आप पहले भी कमेंट करना चाह रही थी। When we are doing the Biplane-Simpson or any of the quantitative method, हमारे पास जो thoughts होती हैं वो ये कि reproducible है। अगर जो मैंने बाइप्लेन किया है मेरे साथ वाला भी वही करेगा, क्योंकि बाइप्लेन एक क्वांटिटेटिव मेथड है, ठीक है। तो जैसे एक वकील होता है ना, अपने सारे सबूत लेके चलता है, सारी एविडेंसेस, तो इट्स लाइक अ एविडेंस फॉर यू। हो सकता है मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया कि मेरी और डॉक्टर रहमान की विजुअल एस्टिमेशन में डिफरेंस आएगा, बाइप्लेन का डिफरेंस कम होता है, तो दैट्स वाई इट्स मोर रिलायबल, दैट्स वाई इट शुड बी डन इन ऑल पेशेंट, क्योंकि वो रिप्रोड्यूसेबल मोर एक्यूरेसी के साथ है आइडियली। और बाकी मेरे सीनियर्स ने ऑलरेडी बता दिया आपको कि वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटो, वी डू गॉट डॉक्टर इमरान इन आवर सिस्टम, कि ऑटो है वो, तो ऑटो से आपने बटन दबाया वो खुद ही निकाल देगा।